Okay, dear students, let us start today's lecture. Before going to start today's agenda, I will first discuss what we have learned up till last lecture. So up till last lecture, we have discussed minimization of DFA. We have discussed certain key points that why minimization is required. So we have discussed that minimization gives us a design with lesser number of states. So our design will be simpler, and because it is using lesser number of states, so design will be better also. And because there are lesser number of states, so less number of resources we are using. So if we actually implement our design in some physical machine, then the cost of implementation will also be less. Then we have discussed what is the basis of minimization. So we have discussed that if there are equivalent states present in the DFA, then minimization is possible. Then concept which were useful for finding the equivalent states. We have discussed the concept of equivalent states, K equivalent states, and certain properties of the equivalent and K equivalent relations. Then we have also discussed how we can find K plus 1 equivalent states from the K equivalent states. And on the basis of this, we have found the process of minimization. So it is basically a four-step process. Step 1 is the construction of the pi 0th level partition. Then we will perform a repetitive step, that is the step 2, in which we will find pi k plus 1 with the help of pi k for k is equal to 0, 1, 2 and so on until we do not get pi k is equal to pi k plus 1. And whenever we get pi k is equal to pi k plus 1, then pi k represents the final set of equivalence classes. Okay. Then in the step 4, we will construct the minimized state automaton corresponding to each equivalence class. We will form one state and we will complete the transition table. So this is the process of minimizing the DFA. Then we have taken one example which has covered all possibilities. So this was all we have discussed on the last lecture. Our today's agenda is to discuss the epsilon NFA. So this is a new variety of FA which we are going to discuss. First of all, we have discussed DFA, then we have discussed NFA. Now we will discuss another variation to these kind of machines that is called as epsilon NFA. In short, we will write it something like this. So this is epsilon and dash NFA means epsilon NFA. We will discuss its concept, some examples, and then we will see the equivalence of epsilon NFA with NFA and DFA. For going to the today's agenda, on last lecture I had given you some problem to solve and I had also given you the solution. Have you done it, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, sir. So is there any problem or you were easily able to do it? No. Okay. Okay, so I will advise you that some more problems related to this you should solve, because I have told you on last lecture as well that these two topics, that first one is the conversion of NFA to DFA and the second is minimization of DFA. इन दोनों पर एक प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आती है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस जो है कर लीजिए क्वेश्चंस की. Now we are moving to our today's agenda, that is the epsilon NFA. So let us start discussing. In epsilon NFA, what we do? We allow a transition on epsilon. Means when we allow transition on epsilon, that is the transition on empty string. Epsilon is what is it? Is empty string. So we are allowing a transition on empty string, means without reading anything we can change the state. अभी तक हमने जो भी मशीन डिस्कस की है, चाहे वो DFA था चाहे हमारा NFA था, without reading the symbol we were not changing the state. We were changing only the state only in the case when we are reading something from input string. DFA में क्या था? DFA में हम जैसे ही कोई सिंबल रीड करते थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक स्टेट हमारी DFA के अंदर होती थी, हम उस पर मूव करते थे. NFA के केस में क्या था कि जैसे ही हमने इनपुट से कोई सिंबल रीड किया तो उस सिंबल पर मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल थे. ओके, हो सकता है कोई ट्रांजिशन ना हो तो हम वहीं पे स्टे करेंगे, ठीक है. और अगर उस केस में इनपुट क्रैश होगा, सॉरी,
और अगर हम जो है कुछ जगहों पे ट्रांजिट कर सकते हैं तो मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल थे, मीन्स एक स्टेट पे भी पहुंच सकते थे, 2 पे भी पहुंच सकते थे, 4 पे भी पहुंच सकते थे, मल्टीपल स्टेट्स पर हम पहुंच सकते थे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विदाउट रीडिंग एनी सिंबल फ्रॉम द इनपुट वी कैन चेंज। सो मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग पे हम ट्रांजिशंस अलाउ कर रहे हैं। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ एप्सिलॉन एंड एफए इज क्लियर क्लास। What is the change in epsilon and FA from the NFA? That is, we are permitting transition between the states without reading a symbol from the input string. Is it clear, class? Class? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एप्सिलॉन एंड एफए का जो कॉन्सेप्ट, देखिए डीएफए में क्या था, सबसे पहले डीएफए डिस्कस करते हैं। डीएफए में हम क्या करते थे, एक सिंबल रीड करते थे इनपुट से। तो हमारे पास यहाँ इनपुट था, सपोज इनपुट, सो रीड सिंबल एंड चेंज स्टेट एंड चेंज टू यूनिक स्टेट, यूनिक स्टेट। ऐसा ही होता था ना कि उस सिंबल के जिस स्टेट पर है उस सिंबल से किसी एक यूनिक स्टेट पर हम जा सकते थे, तो उस पर हम मूव कर जाते थे। ये हमारा डीएफए में था। वाइल एनएफए में क्या था, हम सिंबल रीड कर रहे थे और सिंबल को रीड करने पे हम मल्टीपल स्टेट पर मूव कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल ट्रांजिशन थे, 0 ट्रांजिशन भी हो सकते थे, 1 ट्रांजिशन भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 3 भी, एंड सो ऑन। मल्टीपल ट्रांजिशंस वर पॉसिबल। तो अगर मेरा एक ही ट्रांजिशन है तो केवल एक यूनिक स्टेट पे मैं पहुंच रहा हूँ तो वहां पहुंचूंगा। लेकिन अगर सपोज मेरे उस सिंबल पे 2 ट्रांजिशन दिए हुए हैं तो उन दोनों में से उन दोनों ही स्टेट पर मैं मूव कर सकता था। सो मल्टीपल स्टेट्स आई वॉज एबल टू रीच, बट ऑन रीडिंग दी सिंबल। विदाउट रीडिंग दी सिंबल कोई चेंज पॉसिबल नहीं था। यानी कि हम स्टेट चेंज कब कर रहे थे, केवल तभी कर रहे थे जब हम कोई सिंबल रीड कर रहे थे, इन एनएफए और इन एनएफए एज वेल एज इन डीएफए। डिफरेंस दोनों में क्या था कि डीएफए में किसी यूनिक स्टेट पर पहुंच रहे थे और एनएफए में हम मल्टीपल स्टेट्स पर पहुंच सकते थे। यहां तक क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, अब एप्सिलॉन एनएफए में हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन एनएफए में हम वी आर अलाउइंग इन ट्रांजिशन ऑन एप्सिलॉन। अभी तक हम केवल इनपुट सिंबल्स पे ट्रांजिशन अलाउ करते थे। मान लीजिए सपोज मेरा इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी। सो मेरे ट्रांजिशन या तो ए पे डिफाइन होंगे या बी पे डिफाइन होंगे। इसके अलावा किसी और सिंबल पे स्टेट का चेंज या ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस एप्सिलॉन पे भी स्टेट का चेंज या ट्रांजिशन अलाउ कर रहे हैं। एप्सिलॉन क्या है, इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, इट डज नॉट कंटेन एनी सिंबल, इट डज नॉट कंटेन एनी सिंबल। देखिए मेरा कोई स्ट्रिंग सपोज ए बी ए है, अगर इस स्ट्रिंग पे मैं ट्रांजिट करूं तो पहले ए रीड करूंगा, फिर कहीं पहुंचूंगा, फिर बी रीड करूंगा, फिर किसी स्टेट पे पहुंचूंगा, फिर ए रीड करूंगा, किसी स्टेट पे पहुंचूंगा। सो आफ्टर रीडिंग दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट आई विल रीच समवेयर। जबकि एप्सिलॉन में मेरा क्या होता था, मैं स्टार्ट स्टेट पर ही रहता था, क्योंकि अगर स्टार्ट स्टेट से शुरू कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मैं स्टार्ट स्टेट पर ही एंड करता था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं मैं स्टार्ट स्टेट पे ही एंड करूँ, इस एप्सिलॉन पे मैं किसी दूसरी स्टेट पे भी चेंज कर सकता हूँ। एप्सिलॉन मतलब विदाउट रीडिंग एनीथिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग पर। सो दिस इज अवर एप्सिलॉन एनएफए। जिन एनएफएज में हम इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे, वो एफए हमारे क्या कराएंगे, एप्सिलॉन एनएफए कहलाएंगे। नाउ इट इज क्लियर? विल टेक वन एग्जांपल एज वेल। ओके, कॉन्सेप्चुअली इट इज क्लियर और नॉट? डिफरेंस क्या है डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में? डीएफए में यूनिक स्टेट पे पहुंचते हैं आफ्टर रीडिंग द सिंबल, एनएफए में मल्टीपल स्टेट्स पर पहुंच सकते हैं आफ्टर रीडिंग द सिंबल। एप्सिलॉन एनएफए में सिंबल पे भी हम ट्रांजिशन कर सकते हैं और विदाउट सिंबल भी ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी कि विदाउट रीडिंग एनी सिंबल फ्रॉम द इनपुट वी कैन चेंज द स्टेट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस with the epsilon NFA. So now we may represent epsilon. Now we come to the representation of the epsilon NFA. So we may represent
the epsilon NFA exactly as we do an NFA. जैसे NFA को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो NFA को हम एक 5 टपल से रिप्रेजेंट करते थे. A is equal to Q sigma delta Q0 and F. So epsilon NFA को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 5 टपल से Q sigma delta Q0 and F, जहाँ पे Q सिग्मा Q0 एंड F के वही मीनिंग्स हैं जो NFA के लिए थे. आप देखिए जब हमने NFA और DFA डिस्कस किया था तो उसमें भी Q सिग्मा Q0 एंड F के वही मीनिंग थे. सो Q वाज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा वाज ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, Q0 वाज द स्टार्ट स्टेट एंड F वाज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. ओके, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन. Delta, the transition function that takes a state in Q, so its input are a state in Q and an input symbol in this sigma or epsilon. This is a change from the definition of NFA. NFA की definition में केवल ये दो words नहीं थे. NFA की definition में सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था. Delta is a transition function that takes a state in Q and an input symbol in sigma and returns a subset of Q, means all the states which are reachable from a given state and input symbol. Okay, अब यहाँ केवल क्या है, साथ में क्या किया कि input symbols जो सिग्मा के हैं उसके अलावा हम एप्सिलॉन पे भी ट्रांजिशन ले सकते हैं. सो मेरे इनपुट में क्या होगा, एक स्टेट होगी, किस स्टेट पर हूँ, और उस स्टेट से या तो कोई एक इनपुट सिंबल लूंगा या एप्सिलॉन लूंगा. इन दोनों में से किसी भी एक चीज को लेके मैं ट्रांजिशन कर सकता हूं. आई कैन रीच टू ए सबसेट ऑफ Q, आई कैन रीच टू ए सेट ऑफ स्टेट्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा फॉर एप्सिलॉन ट्रांजिशन. ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन का जो डेल्टा है, एप्सिलॉन NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा, इट इज फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन. अगर ये आप NFA के लिए देखते तो ये क्या था कि NFA के लिए क्या था, Q क्रॉस सिग्मा 2 टू द पावर Q, और यहाँ ये क्या है, इट इज Q क्रॉस सिग्मा यूनियन, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज सिग्मा, यानी कि सारे के सारे इनपुट सिंबल्स पर ट्रांजिशन हो सकता है और साथ में एप्सिलॉन पर भी ट्रांजिशन हो सकता है. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग. यहाँ मेरे पास एक सेट था सिग्मा, अब उस सिग्मा वाले सेट में मैंने क्या इंक्लूड कर लिया, एप्सिलॉन और ऐड कर लिया. इज इट? तो मींस मैं एप्सिलॉन पर मेरे किन स्टेट्स पर पहुंच सकता हूं, दैट आल्सो हैव टू बी सीन. इज इट? नाउ फ्रॉम ट्रांजिशन फंक्शन इट इज क्लियर. व्हाट डू वी मीन? अगर हम इसको ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में देखें, देन ट्रांजिशन टेबल मस्ट इंक्लूड वन एडिशनल कॉलम फॉर एप्सिलॉन. यानी कि अगर मैं एक कोई NFA लूं, उसकी ट्रांजिशन टेबल का फॉर्मेट क्या होगा, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा, स्टेट ओब्लिक सिग्मा. इधर की तरफ मेरे इनपुट सिंबल्स होंगे, सपोज मेरे दो इनपुट सिंबल हैं A एंड B. इज इट? तो अगर मेरा नॉर्मल ट्रांजिशन टेबल होती NFA की, तो यहाँ मेरी कोई स्टार्ट स्टेट होती Q0, उस पर Q0 ऑन A मैं एक सेट लिखता कि कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, सपोज Q1, Q2, समथिंग लाइक दिस. On B, suppose it is 5, like this. Okay, so then I would have written the transition for Q1 and Q2 as well. And suppose Q2 is final state, so on Q1 I will be writing, suppose it is Q0, Q1, suppose. On B, suppose it is Q2 only. And on Q2, suppose I write it is Q2, or I write Q0, something like this. So this is simply a transition table of a NFA. यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मेरा एप्सिलॉन NFA है तो देयर विल बी वन मोर कॉलम. बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा. देयर विल बी वन मोर कॉलम लेबल्ड एप्सिलॉन. तो अब मैं देखूंगा कि Q0 से विदाउट रीडिंग एनीथिंग मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ. सपोज आई रिप्रेजेंट दैट Q0 से विदाउट रीडिंग आई कैन रीच Q1 ऑल्सो. इज इट? सपोज Q1 से कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन मेरा नहीं है तो इट इज 5. ओके, Q2 से सपोज मेरा कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, आई कैन रीच टू Q0. Something like this I will be representing. So what changes will be there in epsilon NFA? That only one additional column will be there corresponding to the epsilon transitions. Means मुझे केवल ये और डिक्लेयर करना है कि हर स्टेट से without reading anything
मैं किन किन स्टेट्स पर पहुंच सकता हूं। ओके, अब वो एक सिंगल स्टेट भी हो सकती है और एक सेट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। हो सकता है Q1 से जैसे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर फाई है, Q1 से मैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग कहीं नहीं पहुंच सकता। ए रीड करने पे Q0 Q1 पे पहुंचूंगा, बी रीड करने पे Q2 पे पहुंचूंगा। जबकि Q0 से ए रीड करने पर मैं Q1 Q2 पर पहुंच रहा हूँ, बी रीड करने पे कहीं नहीं पहुंच रहा, और एप्सिलॉन रीड करने पे यानी कि कुछ भी नहीं रीड करके मैं सीधे Q0 से Q1 चेंज कर सकता हूँ। ओके, is it? So similarly Q2 से on A I can reach to Q2 itself, on B I can reach to Q0, and on epsilon also I can reach to Q0। कि अगर मैं बिना चाहूँ तो B रीड करके Q0 पे पहुंच जाऊँ और चाहूँ तो B को रीड किए बगैर Q0 पे पहुंच जाऊँ। Is it? So this flexibility we are taking. So transition table का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, केवल addition of one column. I hope now concept of epsilon NFA is clear to you. What do we mean by epsilon NFA? इसके repercussions क्या होंगे, इसके results क्या होंगे, why we are discussing it, this we will be discussing later on. अभी तक ये बताइए कि epsilon NFA समझ आया कि नहीं, कि epsilon NFA है क्या क्लास? Yes, sir. Okay. So we have understood what is epsilon NFA. Now we'll take one example. Okay, this example is language. We have to find, we have to make an FA corresponding to the language which contains some zeros. हो सकता है एक भी ना हो, if any, जहां मैंने लिखा है इसका मतलब हो सकता है एक भी ना हो। ओके, followed by some ones, if any यानी कि हो सकता है कोई वन ना हो, followed by some twos, हो सकता है कोई ना हो। तो अब जब मैं इस लैंग्वेज को एक रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूं तो सिंपली माय रेगुलर एक्सप्रेशन कम्स लाइक दिस, 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक। ओके, अगर आपको याद हो तो ये हमारे जो है जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, इसका डीएफए आप लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। इज इट और नॉट क्लास? डज एनीबॉडी रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have already made a DFA corresponding to it. मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से इसका एक डीएफए नहीं एनएफए बना लीजिए। ठीक है, एनएफए बनाना शुरू करते हैं। अब ये जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया हुआ थी इस लैंग्वेज से दिस लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। इससे क्या है, अगर मैं इस स्टार की जगह 0 ले लूं और इस सेकंड स्टार की जगह, थर्ड स्टार की जगह भी 0 ले लूं, यानी 1 और 2 नहीं है मेरे words में, so means 0 asterisk, only zeros may be there in my strings. So all these strings consisting of some number of zeros will also be accepted. ऐसा हो सकता है कि मैं पहले स्टार की जगह 0 ले लूं, तीसरे स्टार की जगह 0 ले लूं, और मेरे पास केवल वंस है मेरे स्ट्रिंग में, तब भी मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। यानी कि 1 एस्ट्रिक, दिस इज अनदर लैंग्वेज विच दिस इज रिप्रेजेंटिंग। तो पहली लैंग्वेज क्या होगी, 0 एस्ट्रिक, केवल जीरोज। दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई, 1 एस्ट्रिक, ओनली वंस। तीसरी लैंग्वेज क्या हो गई, पहले 2 स्टार की जगह 0 ले लूं तो केवल 2s हैं इसके अंदर, तो इट विल बी 2 एस्ट्रिक। ये मेरी तीसरी लैंग्वेज होगी। चौथी लैंग्वेज क्या हो सकती है कि ये तीसरा वाला स्टार 0 है, केवल जीरोज और 1 है मेरे पास, कुछ जीरोज हैं कुछ वंस हैं। सो चौथी लैंग्वेज क्या हो गई, 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक। और पांचवी लैंग्वेज क्या हो गई इसी तरह से, 0 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक। मेरे पास सपोज वंस नहीं है तो 0 के बाद केवल 2s आ सकते हैं। ओके, सो 0 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक। So this is the language. Similarly, in the similar manner, I can find out that another language will be 1 asterisk 2 asterisk. So 0 asterisk 1 asterisk, 0 asterisk 2 asterisk, 1 asterisk 2 asterisk, या फिर हो सकता है zeros भी हों, ones भी हों और twos भी हों, यानी कि the same one, 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk, कि zeros भी हैं, ones भी हैं and twos भी हैं। So इन सारी languages का combination union है ये particular लैंग्वेज। तो इसका अगर मैं डिजाइन करना चाहूँ तो बड़े आराम से इसको डिजाइन कर सकता हूँ। सपोज मैं सबसे पहले पहली वाली लैंग्वेज के लिए डिजाइन करता हूँ। ओके, आई एम, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कैसे बनाया है, बट आई एम टेलिंग यू ए वेरी इजी मेथड ऑफ मेकिंग इट। तो इसको कर लेते हैं, इसको मैं बनाता हूँ स्टार्ट स्टेट। ओके, यहाँ से चूंकि अब ऐसा भी हो सकता है तीनों स्टार की जगह 0 तो नल स्ट्रिंग विल आल्सो बी एक्सेप्टेड, नल स्ट्रिंग विल आल्सो गेट एक्सेप्टेड। ओके, so that's why start state should be the final state as well. So this is start as well as final state. Now on 0 asterisk, so I say that on 0 I will move to here and this will also be a final state and all my further zeros will get accepted here. So this is a clear cut NFA. Okay,
आप देखिए 0 पे मैंने बना दिया इसको, इसका 1 पे और 2 पे क्या ट्रांजिशंस होंगे मैंने नहीं डिफाइन किया, ना इसके 1 और 2 पे क्या ट्रांजिशन होंगे मैंने डिफाइन नहीं किए। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 एस्ट्रिक हो, ओके, तो नल तो है ही यहाँ। अब मैंने क्या किया, एक दूसरी फाइनल स्टेट बनाई, and on 1 I am moving to that final state. Is it? On 1 I am moving to that final state, and on 1 I will remain here. So 1 asterisk will get accepted on this path. Is it or not? And then similarly जब मुझे 2 कराना है तो मैंने एक और फाइनल स्टेट बनाई, इस पर मैं 2 पर रहूंगा for 2 asterisk, okay, and this will go on 2. Is it? क्लियर? तो अब मैंने 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक ये 3 लैंग्वेजेस फाइनल कर ली, लेकिन अगर सपोज मेरी लैंग्वेज 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक वाली फॉर्म की हो, यानी कि ये फॉर्म के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे, नल एक्सेप्ट होगा, इस फॉर्म के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे, 1 एस्ट्रिक इस फॉर्म के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे, एंड 2 एस्ट्रिक इस फॉर्म के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे। अब अगर मेरे वर्ड 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक के फॉर्म के, यानी कि 0 एस्ट्रिक तो मैं यहाँ पहुंचा और जीरोज तो मेरे सारे यहाँ कंज्यूम हो गए, लेकिन अब मुझे कुछ 1 भी चाहिए। सो ऑन 1 आई हैव मेड ए ट्रांजिशन, सो मीन्स यानी कि इसके बाद मुझे 1 भी मिल सकता है। 1 से कहाँ जाऊंगा, जहाँ से मैं 1 एस्ट्रिक फर्दर वंस को एक्सेप्ट करा सकूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको जो है बना लिया। सिमिलरली अब अगर मेरी नेक्स्ट फॉर्मेट है लैंग्वेज का 0 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक, तो 0 से तो यहाँ पहुंचा, ठीक है, और उसके बाद मुझे 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो इसका मतलब इसमें मुझे 2 वाला ट्रांजिशन भी डिजाइन करना पड़ेगा। So on 2, I am moving to this state which is corresponding to the 2 asterisk. Is it? अब similarly अगर 1 asterisk 2 asterisk है तो अब की बार मैं 0 वाला पाथ फॉलो नहीं करूंगा, स्टार्ट स्टेट से सीधे 1 लेकर के यहाँ आऊंगा, सारे 1 यहाँ कंज्यूम करूंगा, और उसके बाद जब 2 मिलेगा तो आई विल मूव टू दिस स्टेट और सारे 2 यहाँ कंज्यूम करूंगा। सो 1 asterisk 2 asterisk। अब सिमिलरली अगर 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk है तो पहले यहाँ पहुंचूंगा, जीरोज यहाँ कंज्यूम किए, 1 से यहाँ पे पहुंचा, सारे 1 यहाँ कंज्यूम किए, फिर 2 से यहाँ पहुंचा और सारे 2 यहाँ कंज्यूम किए, तो इस तरह से मेरा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। इज इट? तो ये मेरा NFA है। DFA अभी क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए इस स्टेट का तो 0, 1 और 2 तीनों ट्रांजिशन अवेलेबल है। इस स्टेट के भी आप देखें 0, 1 और 2 तीनों ट्रांजिशन अवेलेबल है। लेकिन अगर इस स्टेट का देखें तो 1 पे तो ट्रांजिशन अवेलेबल है और 2 पे भी अवेलेबल है, मगर 0 पे इस स्टेट का ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो इस स्टेट का 2 पर तो ट्रांजिशन अवेलेबल है, बट ना 1 पे अवेलेबल है ना 0 पे अवेलेबल है। तो अगर मुझे इसको DFA में कन्वर्ट करना हो तो मुझे केवल ये 3 ट्रांजिशन और बनाने कि इसका इस स्टेट का 0 पर और इस स्टेट का 1 और इस स्टेट का 0 और 1 पर। सो दैट विल बी द फेल स्टेट। ओके, सो इसका मैंने बना लिया 0, 1, 2। क्योंकि अगर मैं इस स्टेट पे पहुंचा, यानी कि 1 मेरे को मिल रहा है, चाहे मैं डायरेक्ट आया था यहाँ से या 0 के बाद 1 लेकर के आया था, बट इसके बाद 0 जो है अगर आ गए तो फेल्योर है, क्योंकि 1 के बाद 0 पॉसिबल नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज देखिए, 1 के बाद 0 पॉसिबल नहीं है। सो ऑन 0 इट विल बी गोइंग टू फेल स्टेट, अब ये फेल हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर आप यहाँ पहुंच गए, चाहे कैसे भी पहुंचे, बट इसके बाद 2 आने के बाद ना तो 0 आ सकता है ना 1 आ सकता है। तो अगर 0 या 1 2 आने के बाद आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ए फेलियर। सो ऑन 0, 1, सो यानी केवल इतना हिस्सा बना करके मैं इस NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो NFA इज नॉट इजियर देन DFA इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इज इट और नॉट क्लास? आपको चाहे NFA बनाना हो चाहे DFA बनाना हो, आपको इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी। आपका NFA कहीं भी सिंपल नहीं, जबकि हमने पिछले जब NFA डिजाइन किए थे तो डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि NFAs आर नॉर्मली सिंपलर एंड मोर सक्सीडेंट देन DFAs। और नॉर्मली हम देख रहे थे जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होती थी उसको सीधे रिप्रेजेंट करता था हमारा NFA, लेकिन यहाँ आप देखिए तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन को आपका ये NFA क्या सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं ये वाले ट्रांजिशंस हटा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ये वाले ट्रांजिशंस हटा देता हूं जो DFA के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये सब कुछ मैंने हटा दिया, तो मेरा केवल NFA है। इज इट? तो क्या ये NFA इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है ना? इसका डिजाइन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आपको जितने भी नेसेसरी ट्रांजिशंस थे वो बनाने पड़े, एक तरह से आपको सारे DFA वाले ट्रांजिशंस बनाने पड़े। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? Yes, sir. ओके, सो
to make our design further simpler and further easy, we can introduce the epsilon transitions. Here we can use the epsilon transitions to make our design simpler. मैं देखिए एक बहुत छोटा सा डिजाइन बना रहा हूं, माइनस प्लस, ओके, 0, ये हो गया 0 एस्ट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ओके। अब यहाँ एक बनाया मैंने 1 एस्ट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ बनाया मैंने एक 2 एस्ट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग, और इसको मैंने क्या किया, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से ऐड कर दिया। Will it represent the same regular expression or not? Just look at. Just look at. Class. देखिए, because start state is final state, so null will get accepted. ठीक है, null will get accepted. ठीक है, इसके अलावा भी null जरूरी नहीं इसी स्टेट पे एक्सेप्ट करे। आप देखिए यहाँ से आप एक नल ट्रांजिशन लेके इस स्टेट पे आ सकते हैं। इंसिडेंटली दिस इज आल्सो फाइनल स्टेट, तो आप अपने नल को यहाँ भी ला करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। सिमिलरली फर्दर एप्सिलॉन ट्रांजिशन टेक्स यू हियर, सो इस स्टेट पे लाके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। बट अल्टीमेटली चाहे इस स्टेट पर एक्सेप्ट कराएं, चाहे दूसरी स्टेट पे एक्सेप्ट कराएं, चाहे तीसरी स्टेट पे एक्सेप्ट कराएं, नल इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। ओके, नाउ अब आपका 0 एस्ट्रिक है, सपोज जीरोज आते हैं, सो आप देखिए सारे जीरोज आप यहीं कंज्यूम करेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, एंड बिकॉज दिस इज ए फाइनल स्टेट, तो आपका सारे जीरोज यानी कि 0 एस्ट्रिक, दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली अगर आपको 1 एस्ट्रिक चाहिए, तो आप स्टार्ट स्टेट पे हैं, without taking any symbol from the input, just by taking this epsilon transition, you will come to here in this second state. Okay, और इस स्टेट पर जितने भी वंस हैं वो सारे आप कंज्यूम करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 एस्ट्रिक एक्सेप्ट हो जाएगा। आपका क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 एस्ट्रिक इस स्टेट में एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए दिस इज द ब्यूटी, एक तरह से आपने क्या किया, आपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग इस पहली स्टेट से स्टार्ट ही नहीं की, आपने दूसरी स्टेट से स्टार्ट की। इज इट, आपने दूसरी स्टेट से स्टार्ट की। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक तरह से देखिए ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको स्टार्टिंग स्टेट के पॉइंट पे भी नॉन डिटरमिनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। मींस वो आपको ये कह रहा है कि या तो आप अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट स्टेट जो दी हुई है उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई दूसरी स्टेट भी हो सकती है जिसपे आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के पहुंच सकते हैं। आप स्टार्ट स्टेट से अगर आपके एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसी किसी भी स्टेट पे पहुंच के अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये वाली जो स्टेट है ये भी स्टार्ट स्टेट का ही वर्क करेगी। इज इट, सो दैट्स व्हाई 1 एस्ट्रिक विल गेट एक्सेप्टेड। सिमिलरली अगर आपको 2 एस्ट्रिक चाहिए, तो आप सिंपल पहला एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के इस स्टेट पे आइए, उसके बाद अगला एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के इस स्टेट पे आइए, क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन में तो आपका इनपुट से तो कुछ खर्च हो नहीं रहा। You don't have to read anything from the input, you have to simply change the state. Okay, so you will change the state from starting state to this first state, and this first state to this second state. You will come here and all 2s you will consume here. Is it? So आपका 2 asterisk भी accept हो जाएगा. Similarly, if you want 0 asterisk 1 asterisk, so all zeros will get consumed here. Then you will take a null move. You will come here, and all the ones will be consumed here, and you will end up into a final state. So that's why 0 asterisk 1 asterisk will get accepted. In the similar manner, अगर मुझे 0 asterisk 2 asterisk चाहिए, तो all zeros I will consume in this state. I will take a epsilon transition, I will move to this state. Now again I will take a epsilon transition and I will move to this third state, जहां पर कि मैं सारे 2s को जो है कंज्यूम कर सकता हूं, और सारे 2s को कंज्यूम करने के बाद, बिकॉज इट इज अ फाइनल स्टेट, सो 0 asterisk 2 asterisk will get accepted. In the similar manner, 1 asterisk 2 asterisk, I will take a epsilon transition, I will move here, I will start the function processing of my string from this state, so all 1s will get consumed. Then I will take another epsilon transition, I will move here and I will consume all the 2s, and my 1 asterisk 2 asterisk will be accepted. In the similar manner, 0 asterisk 1 asterisk 2 asterisk, so all zeros will be consumed here. You will take an epsilon transition and you will consume all the 1s here. You will again take an epsilon transition and you will consume all 2s here, and your string will get
accepted. So this is a simple epsilon NFA. This is a simple epsilon NFA corresponding to this particular language. और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो आप देखिए ये 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक को सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक, सिंपली, इज इट? सो दिस इज फर्दर मेकिंग आवर डिजाइन सिंपलर. अगर आप इस डिजाइन को और इस डिजाइन को, इन दोनों डिजाइन को कंपेयर करें तो दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन. इट इज इक्वली कॉम्प्लिकेटेड एज योर DFA वाज, ओके, व्हाइल दिस इज अ सिंपलर वन. अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे NFA आपके लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाते, तो सिमिलरली एप्सिलॉन NFA भी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाते. मींस epsilon NFAs will also represent the regular languages, means all the languages which are represented by the normal NFA and DFAs. Okay, यानी कि कोई भी रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी हमारी इंक्रीज नहीं होती. हम epsilon NFA को क्यों यूज कर रहे हैं? ओनली बिकॉज they will be easy to design. Okay, अब हर केस में नहीं, आप देखिए कुछ केसेस में आपका एप्सिलॉन का जो ओवर यूज है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है. ओके, तो हर जगह नहीं, बट जहां पे भी आपको आवश्यकता लगे वहां आप एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का यूज करके आसानी से जो है अपने NFAs डिज़ाइन कर सकते हैं. और अगेन जब हम जो है इसको डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करके अल्टीमेट, चूंकि हमें मशीन्स अपनी क्या चाहिए, डिटरमिनिस्टिक चाहिए. सो हम इस एप्सिलॉन NFA को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? DFA में कन्वर्ट करेंगे. एंड वी हैव मैकेनिकल मेथड्स टू कन्वर्ट एप्सिलॉन NFA आल्सो टू दी DFA. सो ईच एप्सिलॉन NFA इज इक्विवेलेंट टू सम NFA and each NFA is equivalent to some DFA. So ultimately each epsilon NFA is also equivalent to some DFA. So यानी कि हम चाहे epsilon NFA डिजाइन करें, चाहे NFA डिजाइन करें, चाहे डायरेक्ट DFA डिजाइन करें, बेसिकली अल्टीमेटली हमें अपने लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट करना है? DFA में ही कन्वर्ट करना है. इज इट क्लियर और नॉट क्लास? यस सर. ओके, सो यहाँ तक सारी जो है चीजें क्लियर है. हमने जो है सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट डू वी मीन बाय एप्सिलॉन NFA. एप्सिलॉन NFA की हमने डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन में केवल एक चेंज है ट्रांजिशन फंक्शन में, कि हम इनपुट सिंबल्स के साथ साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को भी कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एन NFA. ओके, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने देखा ट्रांजिशन टेबल में क्या चेंज होगा. ट्रांजिशन टेबल में केवल एक एडिशनल कॉलम बढ़ जाएगा. ओके, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे हम एप्सिलॉन NFA का यूज कर सकते थे. तो हमने देखा एप्सिलॉन NFA कैन फर्दर मेक अवर डिजाइन सिंपलर एंड इजियर. ओके, तो यही हमारा पर्पस है जिस वजह से हम एप्सिलॉन NFA भी डिस्कस कर रहे हैं. अल्टीमेटली एप्सिलॉन NFA किस में कन्वर्ट होंगे? DFAs में या NFAs में कन्वर्ट होंगे. एप्सिलॉन NFA से NFA कन्वर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली NFA से DFA कन्वर्ट करेंगे, अल्टीमेटली DFA में कन्वर्ट होंगे. सो दिस इज ऑल I wanted to discuss for the epsilon NFAs. Now we will come to the conversion of epsilon NFAs to NFAs and DFAs. Okay. तो सबसे पहले हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा, that is the concept of epsilon closure. Okay. Let me change the color of pen. Okay. So epsilon closure. So we'll discuss this concept. What do we mean by epsilon closure? First of all, we'll look at its definition. Set of all states that can be reached from some state Q. यानी मेरे पास एप्सिलॉन NFA है, उसमें कोई स्टेट है Q, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ. उस स्टेट से जो भी स्टेट्स रीच हो सकती हैं, जो भी सेट ऑफ स्टेट, चूंकि NFA है तो वी कैन रीच टू अ सेट ऑफ स्टेट्स. सो सेट ऑफ ऑल स्टेट्स that can be reached from some state Q in an epsilon NFA only through epsilon transitions. Only through epsilon transitions. यानी कि मैं इनपुट सिंबल्स के ट्रांजिशंस नहीं देख रहा, केवल एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू उस स्टेट Q से जिन स्टेट्स पर मैं पहुंच सकता हूं, that is called the epsilon closure of that particular state Q, and I will refer it as E close of Q. So, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? E क्लोज ऑफ Q से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये क्या है?
set of all those states which are reachable from Q only through epsilon transitions. Okay, just एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. पिछला वाला जो एग्जांपल है हमारा ये, अगर मैं ये पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर स्टेट को अगर मैं Q स्टेट कह लूँ, पहली वाली जो स्टेट है मेरी स्टार्ट स्टेट, अगर मैं इसको Q कहूँ तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? इसका एप्सिलॉन क्लोजर एक तो इस स्टेट पर तो मैं हूँ ही, सपोज मैं इसको Q, इसको R और इसको S बोल देता हूँ. इज इट? सो ये मेरा क्या है? Q. सो मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं? E क्लोज ऑफ Q. Q का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा? तो वो सारी स्टेट जहां पे आप Q से केवल एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच सकते हैं. आप देखिए कहां पहुंच सकते हैं. आपने एप्सिलॉन यूज किया, यानी कि इनपुट से कुछ नहीं लिया, एप्सिलॉन ले आप कहां पहुंच सकते हैं? R पे पहुंच सकते हैं. ओके, नंबर वन आप Q पर तो हैं ही, आप और कहां पहुंच सकते हैं? R पे पहुंच सकते हैं. अब लेकिन केवल R पे पहुंच के रुक जाएंगे? आप देखिए R से भी तो आगे आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू पहुंच सकते हैं. इज इट? सो अगर R के जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? S पे. सो S विल आल्सो बी इंक्लूडेड here. So this QRS will be called the epsilon closure of this particular Q. क्योंकि आप देखिए without reading any symbol from the input, from Q you can reach to any of these states. Is it? Q से आप R पे भी पहुंच सकते हैं और Q से आप S पर भी पहुंच सकते हैं without reading any symbol from the input. Is it clear or not? So conceptually what do we mean by E close? It is clear? Yes? सर ये एप्सिलॉन से हम एक ही स्टेट पर पहुंच सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स पे भी पहुंच सकते हैं? मल्टीपल स्टेट पे भी पहुंच सकते हैं, बिकॉज देखिए इट इज एन एनएफए. एनएफए में हमारा क्या है, जैसे हम एक इनपुट सिंबल पे, मेरी मान लीजिए Q स्टेट है और एक इनपुट सिंबल सपोज A पर मैं सपोज R पे भी पहुंच सकता हूं. सपोज on A I can also reach to S. So multiple transitions on a symbol are possible. Similarly, multiple transitions on epsilon are also possible. Okay, तो Q से मैं मल्टीपल स्टेट पे, जैसे ऐसा हो सकता था मेरा Q कॉमा Q से मैं पहुंच रहा हूं सपोज एप्सिलॉन पे R, एंड Q से ही दूसरा मेरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी है S. इज इट? सो मल्टीपल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं एक जैसे स्टार्ट स्टेट है, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, इससे मेरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन है ये पहली स्टेट, इससे मेरा ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन है ये दूसरी स्टेट, और इससे मेरा ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन है सपोज ये तीसरी स्टेट. सो ऑल दीज थ्री स्टेट्स आई कैन रीच. अब अगर मैं क्या करूं, ये स्टेट भी मेरी क्या है? फाइनल स्टेट. ये स्टेट भी मेरी क्या है? फाइनल स्टेट. ये स्टेट भी मेरी क्या है? फाइनल स्टेट. अब मैं वापस वही कर लेता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2. ओके, और इसी तरह से यहाँ पर मैं ये क्या कर लेता हूँ? एप्सिलॉन एप्सिलॉन. इज इट? तो आप देखिए ये एनएफए और ये एनएफए दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? जस्ट लुक एट, बोथ आर सिमिलर और नॉट? दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि यहां आप देखिए इन दोनों एप्सिलॉन ट्रांजिशंस की वजह से आप अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग इस पहली स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस दूसरी स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस तीसरी स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. एक तरह से तीनों स्टेट क्या हो गई? आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो गई. अगर सपोज आपको 0 वाला स्ट्रिंग है तो ये स्टार्ट स्टेट है, अगर केवल 1 वाला स्ट्रिंग है तो आप अल्टीमेटली यहाँ पहुँचते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट सिंबल, और यहाँ से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं. तो एक तरह से ये स्टेट भी क्या है? आपकी स्टार्ट स्टेट का काम कर रही है. सिमिलरली अगर 2 एस्ट्रिक है तो आप पहला एप्सिलॉन दूसरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के यहाँ पहुँचते हैं अल्टीमेटली, और यहाँ से अपने इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करना शुरू करते हैं. सो दिस स्टेट इज ऑल्सो वर्किंग एज द स्टार्ट स्टेट. अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एप्सिलॉन एनएफए में स्टार्ट स्टेट एक ही बनाई और एप्सिलॉन ट्रांजिशंस के थ्रू उन स्टार्ट स्टेट्स पे मैंने आपको मूव करा दिया. अगर 0 स्टिक चाहिए तो आप यहाँ पहुंच जाइए, 1 स्टिक चाहिए तो यहाँ पहुंच जाइए, और 2 स्टिक चाहिए तो यहाँ पहुंच जाइए. इज इट? आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट डिजाइन. इज इट? तो इस तरह से आप जो है, चूंकि इस वाले में एप्सिलॉन पे एक स्टेट से एक ही ट्रांजिशन निकल रहा था, तो शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं या नहीं है. सो आई हैव जस्ट शोन यू थ्रू दिस एग्जांपल that multiple transitions on epsilon from a single state are also possible because it is an NFA. So NFA states that on any symbol you can have multiple transitions. So in the similar manner on epsilon as well you can have multiple transitions from a state. Now I think it is clear, class? Yes, sir. Okay.
So we have understood what do we mean by E-close. Okay, E-close is basically the set of all states that can be reached from some state Q only through the epsilon transition. Now we will have the process of finding E-close Q. हालांकि अभी पीछे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उससे आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इंक्लूड Q itself in the E-close Q. सबसे पहला जो स्टेट है उसी को E-close Q में इंक्लूड करिए क्योंकि वो स्टेट तो अपने आप से रीचेबल है. इज इट? देन फॉलो all the transitions out of Q that are labeled epsilon and include the reached states into the E-close of Q. जैसे कि अभी पिछले केस में मैंने क्या किया था, सपोज ये मेरा Q था तो सबसे पहले तो मैंने Q को इंक्लूड किया था, उसके बाद Q से R रीचेबल था थ्रू एप्सिलॉन ट्रांजिशन, सो दैट्स वाई मैंने R को इंक्लूड कर लिया था. तो जिस भी स्टेट पे मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू पहुंच रहा हूँ उन सारी स्टेट्स को मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा. चूंकि यहाँ एक ही स्टेट थी R जिस पे मैं पहुंच रहा था तो इसलिए मैंने केवल R को इंक्लूड किया था. अगर मान लीजिए एक आध और स्टेट होती तो ये सपोज फॉर एग्जांपल इस दूसरे वाले एप्सिलॉन एनएफ पे ले लेते हैं. सपोज दिस इज द स्टेट Q, दिस इज R, दिस इज S एंड सपोज दिस इज T. ओके, सो अब मैं E-close Q निकाल रहा हूँ. E-close Q. So it is what? First of all, Q is included. So पहला स्टेप Q is included. दूसरा, Q से बाहर जितने भी ट्रांजिशंस जा रहे हैं जो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं, तो ये भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, ये भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, ये भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है. तो R, S और T तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगे. इज इट? अब आप देखिए इसके बाद क्या करना है मुझे. मेरा लास्ट थर्ड स्टेप इज when we get some new states in E-close Q. अब जब मैंने Q के जितने भी स्टेट्स रीचेबल हैं ओनली थ्रू एप्सिलॉन ट्रांजिशन वो इंक्लूड की, तो कुछ नई स्टेट ऐड होंगी इसके अंदर. देन वी फॉलो द एप्सिलॉन ट्रांजिशंस आउट ऑफ दिस स्टेट एंड आल्सो कंटिन्यू विद द प्रोसेस टिल ऑल द न्यू स्टेट्स बीइंग एडेड आर प्रोसेस्ड. यानी कि जब तक नई स्टेट ऐड होती रहेंगी, जब तक वो सारी नई एडेड स्टेट प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी केस में मैं यहाँ देखूं Q के बाद R, S और T मैंने इंक्लूड किया. अब मैं देखूंगा चूंकि R, S और T ये नई स्टेट इंक्लूड हुई मेरी. Q को तो प्रोसेस कर लिया मैंने, Q से बाहर जाने वाली जितनी भी स्टेट्स थी जिन पे मैं पहुंच सकता था एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू वो सब मैंने इंक्लूड कर ली, तो Q तो प्रोसेस हो गया. अब R, S, T ये नई स्टेट्स ऐड हुई, तो अब R से जितने भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर जा रहे हैं वो जिस भी स्टेट पे पहुंच रहे हैं वो स्टेट ऐड करूंगा. सो R से केवल एक ही एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, दैट इज गोइंग टू S, दैट इज गोइंग टू S. सो आई विल इंक्लूड S बट S इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो माई R इज ऑल्सो प्रोसेस्ड. मेरा Q प्रोसेस हो गया था, मेरा R भी प्रोसेस हो गया. अब मैं S को जो है प्रोसेस करूंगा. S से बाहर जाने वाला कौन सा ट्रांजिशन है? एप्सिलॉन ट्रांजिशन एक ही है, दैट इज गोइंग टू T. सो आई हैव टू इंक्लूड T. सो T को, बट T इज ऑलरेडी देयर. अगर यहाँ नहीं होता बाई चांस, मान लीजिए सपोज ये वाला एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता तो ये T यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ होता, तो ये किसके थ्रू ऐड होता? S के थ्रू ऐड होता, तो तब ये T नया स्टेट इसके अंदर ऐड हो गया होता. इज इट? बट चूंकि ऑलरेडी T यहाँ है तो मेरा S पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया. मैं T को देखूंगा, अब T से एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे कोई बाहर ट्रांजिशन एप्सिलॉन पे कोई ट्रांजिशन बाहर जा ही नहीं रहा, तो मेरा T भी कंप्लीट प्रोसेस हो गया. यानी जितनी भी नई स्टेट ऐड हुई थी सब प्रोसेस हो गई, कोई स्टेट इसमें प्रोसेस होने से नहीं बची. तो मैं यहीं पे अपने क्लोजर को क्लोज करूंगा. तो Q R S T, इट इज द एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q. ओके, सो जैसे आप यहाँ इस पहले वाले में आपने देखा था, इस पहले वाले में इस वाले को अगर आप देखें तो इसका E-close Q हमने कैसे निकाला? सबसे पहले Q इंक्लूड किया था, फिर Q से बाहर जाने वाली जितने भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है वो एक ही है R, सो हमने R को इंक्लूड किया था. अब Q तो प्रोसेस हो गया, Q से बाहर जाने वाले सारे चेक कर लिए हमने, लेकिन R नई स्टेट ऐड हो गई हमारे पास. सो अब हम R को चेक करेंगे. सो R से एक ही एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर जा रहा है जो कि S पे जा रहा है. ओके, सो वी विल इंक्लूड S, और R को हमने चूंकि अब प्रोसेस कर लिया तो R हमारा प्रोसेस हो गया, लेकिन अब S नई स्टेट ऐड हो गई, तो अब हम S को प्रोसेस करेंगे. S से देखेंगे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर जा रहा है? नहीं, कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन बाहर नहीं जा रहा, यानी कि S हमारा प्रोसेस हो गया और अब कोई स्टेट बची भी नहीं है E-close के अंदर जिसको मुझे प्रोसेस करना बाकी हो. सो आई विल स्टॉप हियर. सो Q R S विल बी द E-close ऑफ Q. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ finding epsilon closure of any state Q.
So this is the concept of epsilon closure, and epsilon closure हम क्या निकालते हैं? For each state we can find out the epsilon closure. Clear? Class. Yes, sir. Okay. So we have learned how we can find the epsilon closure of a particular state. लेकिन अगर मुझे epsilon closure किसी set of states का निकालना हो, suppose Q1, Q2. This is a set of states and I want to find its E-close. So how I will be doing it? Simply, it will be equal to E-close of Q1 union E-close of Q1 union E-close of Q2. Is it simply? यानी आप Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए और उन दोनों को यूनियन कर दीजिए. जो भी रिजल्ट आएगा that will be the E-close of Q1, Q2. Is it clear? तो यानी कि अगर सेट का मेरे को एप्सिलॉन क्लोजर निकालना हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ. इंडिविजुअल स्टेट का निकाल सकता हूँ और इंडिविजुअल स्टेट का मालूम है तो उससे मैं सेट ऑफ स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल सकता हूँ. Is it clear, class? Yes, sir. Okay. Now we will look at why finding this E-close is important. Why finding this E-close is important. So finding E-close is important because it may have impact on the definition of acceptance. Okay. एक situation लेते हैं. Suppose ये मेरा कोई start state है Q1. This is the start state. इससे आगे कुछ ट्रांजिशन गए, ठीक है, कुछ स्टेट्स बनी एंड अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड टू ए स्टेट दैट इज सपोज आई से QI, ठीक है, एंड दिस QI स्टेट इज हैविंग एन एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू ए स्टेट QF विच इज ए फाइनल स्टेट. ओके, सपोज मेरे पास कोई इनपुट स्ट्रिंग था, मैंने स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, प्रोसेस करते करते अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुँच गया? QI, इस स्टेट पर पहुँच गया, इस QI स्टेट पर. So means यानी कि Q1 on processing of my input has reached to the state QI. Now question is, my input string is accepted or rejected. QI is not a final state. QI is not a final state. Now my input string will be accepted or rejected. Normal अगर देखें NFA तो चूंकि मेरा एक ही जगह पहुंचा, सपोज मल्टीपल जगह पहुंचे बट वो सारी जगह जो है नॉन फाइनल स्टेट्स थी, तो मेरा इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. बट अगर मैं एप्सिलॉन NF पे है तो देखिए QI से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेकर के आई कैन रीच टू QF, मींस आई डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट. सिंपली अगर मैं QI पे पहुंच गया तो मैं QF पर भी पहुंच सकता हूं. सो भले ही QI मेरी नॉन फाइनल स्टेट है बट QF मेरी फाइनल स्टेट है. सो अगर मैं QI पे पहुंचा तो बाई टेकिंग द एप्सिलॉन स्ट्रिंग आई कैन रीच टू द QF, मींस विदाउट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट आई कैन रीच टू द QF व्हिच इज अ फाइनल स्टेट. सो माय इनपुट स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड. इज इट? सो यानी कि एप्सिलॉन NFA के केस में मुझे केवल वो सेट ऑफ स्टेट नहीं चेक करना है जिस पे मैं इनपुट को प्रोसेस करने के बाद पहुंचा, मुझे उसका एप्सिलॉन क्लोजर भी चेक करना है. तो मींस नाउ द स्ट्रिंग्स गेट एक्सेप्टेड इफ either of these two set of states contains a final state. पहला सेट क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स obtained आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिंग. यानी कि जिन जिन स्टेट्स पर मैं स्ट्रिंग्स की Students, are you getting my voice? Yes, sir. अभी बीच में वॉइस डिस्टर्ब हुई थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So now you are getting my voice? Okay. So what we were discussing that now the strings will get accepted if either of these two sets of states contains a final state. पहला सेट क्या है? Set of states obtained after the processing of string.
यानी कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मैं जिस सेट ऑफ स्टेट्स पे पहुंचूंगा, नॉर्मल एनएफए में मैं उसी को देख करके डिसाइड कर रहा था कि अगर उसमें कोई फाइनल स्टेट है तो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर उसमें कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है तो मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज वन क्राइटेरिया. अनदर क्राइटेरिया इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ स्टेट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिंग. यानी कि अब मैं क्या करूंगा, दूसरा, मान लीजिए इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है मगर इसके एप्सिलॉन बताया ये इसी से रिलेटेड था. क्लास, आर यू गेटिंग द वॉइस? क्लास? Yes. सर अभी बीच में ब्रेक हुई थी. सर अभी बीच में हाँ ब्रेक हुई मुझे सब बीच बीच हाँ, में जा मुझे भी रही है. पता, मुझे भी पता चल रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सो आई थिंक जो भी मैंने डिस्कस किया सबको सब चीज़ सुनाई दी है, इज इट? तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं, कि एक्सेप्टेंस पे ये कैसे इम्पैक्ट करेगा. एक्सेप्टेंस पे ये ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि अगर मैं इनपुट स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग के बाद जिस सेट ऑफ स्टेट पे पहुंचूं, या तो उसमें कोई फाइनल स्टेट हो तो भी एक्सेप्ट होगा, या उसके एप्सिलॉन क्लोजर में कोई फाइनल स्टेट हो तो भी एक्सेप्ट होगा. इज इट क्लियर? मान लीजिए मैं जिस सेट ऑफ स्टेट पे पहुंचा वहां फाइनल स्टेट नहीं है लेकिन उसके एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट है, तो भी मैं अपने स्ट्रिंग को क्या कहूंगा, माई स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. I hope from this example it is clear. From Q1 I have reached to Qi on processing of my input, and suppose Qi is not a final state, and suppose this was the only path which I could reach. Okay, so I सर आवाज नहीं आ रही. hello students, now you are getting the voice. Yes sir. Yes, sir. I think there is some problem at my end in the internet, so that's why. आप लोग तो लगातार चल रहा है ना? Okay, so we were discussing, just 1 minute. We were discussing how it will impact the definition of the acceptance. Okay, so up till now it is clear or not? If there is any doubt, you can ask. Class. Yes, class. यस सर क्लियर. यस सर क्लियर. It is clear. Clear. Okay. Okay. So इसके बाद केवल एक पॉइंट बचता है, that is the conversion of epsilon NFA to the corresponding NFA. Okay. So it is a 3-step process and it is a very simple process. इसमें सिंपल क्या करना है आपको, इसके थ्रू मैं शो कर रहा हूँ कि epsilon NFA और NFA are equivalent. हर epsilon NFA को आप NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. Is it? So replace all the entries in the transition table by its epsilon closure. आपके पास एनएफए की एप्सिलॉन एनएफए की टेबल है, ठीक है? एप्सिलॉन एनएफए की टेबल में स्क्रीन शो नहीं हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही. ओके, जस्ट 1 मिनट. यस. ओके,
Hello class, are you able to listen my voice now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think this problem is continuing, so I am stopping my lecture at this point of time. अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो तो समझ में आ गया होगा. We will continue the other portions in the next lecture. Okay. So I have stopped the recording as well. So we will start on the next lecture because only 3-4 minutes are left. So we will cover the remaining topic on the next lecture. Yes, sir. class. Okay, everybody is listening. Okay. So now, if you wish, you can leave now. If you have any doubt, you can ask. Nothing new we'll be discussing, but if you have any doubt up till what we have covered, then we can discuss. If there is no doubt, you can leave. Thank you, sir. Okay.